Good morning, dear students. My name is Dr. Shafali Daya. I am working at GSSS Katarpuri, Gurgaon. Our subject mentor is Mrs. Anshul Singla. She is working at SCRT Gurgaon. Today, we'll take class 11 chemistry topic Hydrocarbons part 1. Unit 13 Hydrocarbons. In part 1, we'll have alkanes and let's move further. What are hydrocarbons? बच्चों हमने 10th में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ इनिशियली पढ़े थे 2-3 कंपाउंड्स हम लोगों ने उसके देखे थे हाइड्रोकार्बन्स के राइट लेसन नंबर 4 कार्बन्स के अंदर सो दिस वी नो दैट हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन राइट कैसे हाइड्रो इज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन जो कंपाउंड्स हैं वो हमें हाइड्रोकार्बन्स देते हैं राइट Organic chemistry is basically based upon these hydrocarbons and their multiple functional groups and their compounds only, right? तो अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स उसकी 3 types हैं it is classified into its 3 types. The one is saturated, unsaturated and aromatic. Saturated and unsaturated, this we know already, let's revise it. Saturated वो compounds हैं जहां पर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसके बीच में सिंगल सिग्मा बॉन्ड होगा right single sigma bond is between the two carbons which is this one while in unsaturated we have two types further the one is alkene जहां double bond है and alkynes जहां कार्बन कार्बन के सेंटर में ट्रिपल बॉन्ड है राइट where one is sigma and the other is pi bond in alkene. In alkyne we have one sigma, two pi bonds, and in arenes, in aromatic compounds we have arenes where we will find benzene ring-like structures. These are aromatic in nature. इसकी definition हम आपको थोड़ा सा बाद में करवाएंगे जब हम आपको further aromatic compounds पढ़ाएंगे because aromatic compounds are also other than benzenes, right? तो अभी हम basic जो structure ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं ring unsaturated conjugated bonds हैं 1 sigma 1 pi alternate कर रहा है अभी हमने जो हाइड्रोकार्बन्स पार्ट 1 में देखने हैं which are these are alkanes थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं moving to the next slide. Here students in saturated compounds जैसे मैंने अभी आपको बोला these are alkanes. Alkanes have single bonds between the two carbons. This is the single bond, right? They are alkanes and their general formula is CnH2n plus 2 where n is what? Is the number of carbon atoms, right? While in case of unsaturated hydrocarbons, we have two types, which are these. One is alkene and the other is alkyne. Alkene का formula है CnH2n and alkyne is CnH2n minus 2, right? Alkenes हमारे double bonded है, while alkynes are triple bonded compounds. Okay. The third one is aromatic one where what is it? Where arenes are the compounds and they have at least one aromatic ring. These hydrocarbons are cyclic hydrocarbons with alternate C single bond C double bond C and similar to benzene like structures. ये मैंने अभी आपको बताया, we'll do it in detail. Alkanes. Alkanes का we know general formula अभी मैंने आपको बताया. What was it? Yes, CnH2n plus 2. Right? यहाँ पर आप जो पॉइंट्स देखेंगे वो क्या क्या देखेंगे वो ये देखेंगे कि हमारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है फुली सेचुरेटेड है
कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हैं इन बिटवीन पूरे कंपाउंड के अंदर, तो दिस मीन्स दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, राइट। अब इसके बाद हम देख यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं सब डिवाइडेड हैं वो ग्रुप्स, किस किस के अंदर है वो एल्केन डिवाइडेड। सबसे पहले तो जो हम पढ़ते हैं बेसिकली जो हमने 10th में पढ़ा, जो अब हम स्टार्टिंग शुरू करेंगे, क्या है, लीनियर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। सिंपल कार्बन कार्बन अटैच्ड है लॉन्ग चेन के अंदर, वो हमारा लीनियर है। इन बिटवीन अगर ब्रांच हो जाती है, कहीं पे भी कोई साइड में कार्बन अगर अटैच्ड है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्रांच्ड एल्केन। एंड ऑल्सो वी हैव साइक्लोएल्केन्स। अब हम इन तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे, राइट। इन सभी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बन आपको देखने को मिलेगी कि एक कार्बन कितने कार्बन से फर्दर बॉन्डेड है, उसके बेस के ऊपर हमारे ये तीनों कंपाउंड्स हैं, फाइन। अब हमारे पास हम ये भी मानते हैं कि अगर हमारे कार्बन डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड हैं, तो वहां पे हमारे पास आइसोमेरिज्म भी है। वन कुड बी चेन आइसोमर, द अदर कुड बी पोजीशन आइसोमर, एंड एज वेल वी हैव कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, राइट। इसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं, नोट कीजिए कि जो एल्केन्स हैं दे आर द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि केमिकली इनर्ट है, और हम इनको समटाइम्स वी डू कॉल देम पैराफिन्स। व्हाट वी कॉल देम, पैराफिन्स, पैरम, राइट, एफिन्स which is little affinity, ओके। हमारा जो कार्बन है वो एल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मीन टू से वी हैव tetrahedral geometry here, right? One carbon attached to 4 carbons for hydrogens for bonds. This means that all the carbons, all the bonds around the carbon are with the bond angle 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसको हम अगर मीथेन का कहें तो हम इसको CH4 को डिपिक्ट कर रहे हैं, एंड द सेंटर वन इज द फिगर ऑफ sp3 कार्बन, एंड द ब्लू वन इज एल्केन। फाइन, नोट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। अभी मैंने बताया कि कार्बन एल्केन्स को हम 3 फर्दर क्लासिफाई करते हैं, वहां पे अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग काइंड ऑफ कार्बन है, राइट। तो सबसे पहले हम इस एल्केन को देखते हैं जो हमने ग्रीन कलर से बनाया है, द फिगर दिस। यहाँ मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री लिखा है, दिख रहा है सबको। 1 डिग्री आर द प्राइमरी कार्बन, जहां जो हमारा एंड कार्बन है, जो टर्मिनल कार्बन है, वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, राइट। किससे अटैच्ड है वो, 2 डिग्री वाले से। व्हाट इज अ 2 डिग्री, दिस 2 डिग्री इज सेकेंडरी कार्बन विच इज linked with both two sides with the carbon atoms, right। जो प्राइमरी कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, बाकी जो उसके बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, राइट। वो एक एंड कार्बन होगा पूरे के पूरे एल्केन के अंदर। जो सेकेंडरी कार्बन है वो 2 कार्बन एटम से अटैच्ड होगा ऑन बोथ द साइड्स, फाइन। इसको हम 2 डिग्री लिखा हुआ, राइट। इसके बाद हमारे पास 3 डिग्री भी लिखा है, कहीं पे, कहाँ लिखा है, यस, हमारे 4th वाले कार्बन पे। 3 डिग्री मीन टू से tertiary carbon which in turn is bonded with the 3 carbons. Which are these 3? 1, 2 and 3. Okay. 1, 2, 3 है तो 3 degree. Now in the center we have what? We have this carbon which is 4 degree लिखा है. 4 degree mean to say this one. This is what? This is known as quaternary carbon which is connected with, which is bonded with all 4 carbons. अब कार्बन की हमने बताई वैलेंसी 4 है, इसीलिए टर्शरी के बाद क्वाटरनरी, क्वाटरनरी के बाद बस आप ये सोचे कि अरे मैम ने 5 कार्बन तो अटैच नहीं किए। दिस वी नो कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, राइट, एंड इट्स एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, इसीलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी।
नाउ वी विल डू नेमिंग ऑफ एल्केन। अब इतने सारे एल्केन हैं, सब एक दूसरे से अटैच हैं, ब्रांच भी हो गई, साइक्लिंग भी हो गई, फिर अब नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग करने के लिए हमारे पास, हम जो जर्नल लेके चल रहे थे नॉमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन्स का, हम क्या ले रहे थे? इन बिटवीन रूट होगी, एक प्रीफिक्स होगा, एक सफिक्स होगा। तो जो एल्केन है उसके अंदर हम रूट क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, विच इज दिस वन। जब 1 कार्बन होता है तो हम उसको मिथ कहते हैं, 2 है तो इथ है, देन प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेका, 11th को कहेंगे अनडेक, 12 को कहेंगे डूडेक, DO, राइट। सफिक्स के लिए हम कह रहे हैं कि जो पावरफुल ग्रुप होता है उसको लगाते हैं। हमने यही किया था जो इससे पहले वाला लेसन हम नॉमेनक्लेचर का करने चले थे, उसमें हमने क्या किया था कि सफिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम चेन की टेल किसको लगाएंगे? जो मेन ब्रांच होगी, राइट। तो एल्केन के अंदर वी हैव ANE, हम क्या करेंगे? ANE, जो रूट है उसके पीछे सफिक्स एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिथ एन, मिथ एन मतलब 1 कार्बन एंड एल्केन। इथ एन मतलब 2 कार्बन्स एंड एल्केन, 2 कार्बन वाला एल्केन, मीन टू से कार्बन कार्बन इज सिंगली बॉन्डेड, फाइन। अब कई बार क्या होता है, जो ब्रांच हो हमारे पास, तो हम ब्रांच के टाइम पे क्या करेंगे? जो हमारा ब्रांच वाला ग्रुप है उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल्काइल ग्रुप, सी दिस, इसको हम प्रीफिक्स में रखेंगे, प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा, फिर हम रूट और सफिक्स लगाएंगे, फाइन। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले रूट ढूंढी और फिर उसके बाद हमने क्या किया? सफिक्स लगा दिया। प्रीफिक्स इज व्हाट? प्रीफिक्स इज द ब्रांच, जो बाय नाउ अभी हमने एल्केन में करनी है। प्रीफिक्स इज व्हाट? इट इज द ब्रांच। जब हमारे पास 1 कार्बन की ब्रांच है तो हम उसको कहेंगे मिथाइल। हाउ इट इज फॉर्म्ड? मेन एल्केन के अंदर जब हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो हमारे पास जो बाकी 3 बॉन्ड्स हैं, वो जो हमारा 3 हमारे बॉन्डेड बन जाएंगे सिंगल कार्बन वाले, वो हमारा मिथाइल कहलाएगा। इथाइल के अंदर 2 कार्बन होंगे विद 1 बॉन्डिंग फ्री, जो कि ब्रांच लगेगी, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। मीन टू से अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये हैं तो हमारा एल्काइल ग्रुप्स भी सेम काउंटिंग रेंज में चलेगा, मिथाइल, राइट। अगर 6 हो ब्रांच के अंदर तो मैं क्या लगाऊंगी? हेक्साइल। अगर मेरे पास 5 हो तो क्या लगाऊंगी? पेंटाइल। ये सबको समझ में आ गया? वेरी नाइस, इसको नोट करें तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे, फाइन, गुड। नाउ दिस इज एन एग्जांपल। अब ये हमारे लिए पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसको पूरा स्ट्रेट चेन में रखने की ड्रॉ करते हैं, राइट। 2D स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमने जब 2D स्ट्रक्चर बना दिया तो फर्स्ट पॉइंट है टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन निकाली, 1 2 3 4 5 वाली, राइट। हमने रेड वाली जो मार्क वाली है वो वाली निकाली, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने की नंबरिंग, और जो हमने ग्रीन वाली थी वो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की, फाइन। अब जब हमने ऊपर वाली जो नंबरिंग की है रेड वाली, उसके अंदर 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। 4 पे कौन सा है? मिथाइल। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? 2 और 4, तो 2 2 डाइमिथाइल, 4 मिथाइल, मीन टू से 2 2 बार आ रहा है हमारे पास। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आया। और हमारे पास एक बार 4 आया, तो 2 + 4 कितना हो गया? 8। जब हम ग्रीन वाली को करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब हम ग्रीन वाली को करेंगे तो होगा 4, वो 2 + 4 + 4 होगा, तो क्या हो गया? 8 + 2 10। तो हम कौन सी वाली फॉलो करेंगे? रेड वाली। तो इसकी नेमिंग क्या है? 2, 2, 4 सेम है, ट्राई मिथाइल 5, ये तो हमारा है प्रीफिक्स, 1 2 3 4 5 पेंट, और सिंगल बॉन्डेड है हर एक कार्बन, देखो देखो देखो, सिंगल है, कोई डबल नहीं है, ANE। I am repeating the name, 2 2
4-trimethyl pentane. This is the name. Now let's practice this and this. You will do this on your own. मैं आपको इसका नेम नहीं बताऊंगी, आप करेंगे इसको खुद से प्रैक्टिस. नोट कर लें इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, दिस इज आइसोमेरिज्म इन एल्केन. अब हमें पता है कि कार्बन अलग अलग टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. तो एल्केन के अंदर तो हो सकते हैं, हमारे पास लीनियर भी है, ब्रांच्ड भी है और साइक्लिक भी है. फाइन. तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एल्केन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं. आइसोमेरिज्म के अंदर सेम फॉर्मूला है बट इट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले. तो द वेरी फर्स्ट इज पेंटेन. इसको बोलते हैं एन पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन, जहां पर 5 कार्बन है. पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 5, all are linked in a straight chain. This is pentane, right? कोई भी ब्रांच नहीं है. In case of this structure which have 5 carbons but 1 carbon is what? This carbon is tertiary carbon, है ना. 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री वाला टर्शरी कार्बन. 1 is the side chain ब्रांच है. तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आइसोपेंटेन. क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन, क्योंकि कार्बन तो 5 है. ये कॉमन नेम है, अदरवाइज इसका नेम क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटेन. ओके. नेक्स्ट में आप देखें, जो सेंटर वाला कार्बन है ये 4 कार्बन से अटैच्ड है. दिस मीन्स दिस कार्बन इज व्हाट, दिस कार्बन इज क्वाटर्नरी. It is linked with 4 carbons. It has 2 side chain, 1 and 2. इसके पास 2 side chains हैं. Parent chain है 3 की, right? इसका common name है neopentane, but इसका IUPAC name क्या है, 2,2 dimethyl propane. Fine. ये हमारा है isomerism in alkane. Now the preparation of alkenes, इसको लिख लें. प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स क्या है कि हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्कीन है. एल्केन के ऊपर एल्कीन है. हम एल्कीन को जब अनसैचुरेटेड लेते हैं तो जो हमारा पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो उस वाले एक पाई से एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी. इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, जहां पर हमारा कैटलिस्ट जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है वो कौन सा होता है, प्लैटिनम, प्लैटिनम और निकल. सी क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन एक्ट करता है एज अ बेसिस. कैटलिस्ट को रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इट इज एब्सॉर्बेंट. हम इसको इकट्ठे लेते हैं, प्लैटिनम को हम कार्बन के ऊपर लेते हैं. फाइन. सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर एल्केन. देन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमारे पास वुड्स रिएक्शन है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वी गेट even number of, we get what, we get even number of carbon atoms as the product. किससे बनाते हैं, हम इसको बनाते हैं एल्काइल हैलाइड से. एल्काइल हैलाइड क्या है, जो मैंने आपको बताया था, एल्केन में एक हाइड्रोजन कम और एक हमारा हेलोजन अटैच्ड होता है. फाइन. एल्काइल हैलाइड के हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड द मीडियम क्या है, ड्राई ईथर. हमें क्या मिलता है, जो ये वाला आर है ये इस आर के साथ बॉन्ड हो जाता है, राइट. तो अगर हम ये सेम लेते हैं, दिस आर एंड दिस आर, हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है, इसका डबल. फाइन. दिस इज आवर एल्केन. और कोई भी ले, चाहे 1+3 ले, 1+2 ले, द कंपाउंड है हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज इवन इन नंबर. यहाँ पर नोट करना है क्या, कि हमारे पास अगर हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को लेते हैं, ये आर अलग है, ये आर अलग है, लेफ्ट 2 आर अलग हैं, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं. हमारे को ये नहीं पता कि हमारा ये वाला आर लिंक कर रहा है
ये इसी के साथ भी मॉलिक्यूल बना सकता है और नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं, इसलिए वी प्रेफर कि हम सिंगल वाला एल्काइल हैलाइड ले टू गेट अ सिंगल कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी carboxylation. Decarboxylation means the elimination of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं कौन सा कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड. जहां भाई COO होगा उसी को यूज करेंगे. दिस इज आवर COO, राइट. तो हम क्या करते हैं, वी टेक सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हीट करते हैं इन व्हाट, इन NaOH, alkaline, right. हीट करने से we get alkane and sodium carbonate. Then comes Kolbe's electrolysis. Kolbe's electrolysis is basically to get the even number of alkanes. Even number of alkanes की reaction है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, acid की electrolysis करते हैं. This electrolysis will give what? They will give alkane which is even in number at anode and hydrogen at cathode. Fine. This reaction follows a free radical mechanism. Now comes the properties. The property very first is alkanes are colorless. Alkanes are less dense than the water. Alkanes are non-polar. They have melting and boiling point. जो शॉर्ट चेन के उनका लो है, जो हाई की है उनका धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है. फाइन. केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड्स थी कि एल्केन्स आर रिलेटिवली वेरी अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट करना ही नहीं चाहती. They do not react with strong acid bases, oxidizing agents and reducing agents. लेकिन फिर भी कुछ reactions हैं जो हम follow करते हैं. The very first reaction is substitution reaction. यहाँ पर आप देखें the very first step, ये क्या है, मीथेन CH4 है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा क्लोरीन के साथ and CH3Cl will be formed in the presence of light. This is H nu लिखा है ना, this is UV light. लाइट की प्रेजेंस में ये बनेगा क्लोरोमीथेन. फिर इसके बाद दोबारा से यहाँ पर क्लोरीन तो खत्म नहीं हुई ना, लाइट खत्म हुई, तो ये क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन. दिस इज काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन एंड ये कब तक बनेगी, जब तक इसके सारे हाइड्रोजन ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर देती क्लोरीन. फाइन. मूविंग टू नेक्स्ट. कंबशन. कंबशन मतलब किसी चीज का जलना. जैसे हम वुड का कंबशन, कार्बन का कंबशन पढ़ रहे थे, C+O2 CO2 होता है. ऐसे ही जब हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं जो कि मेन एल्केन है, तो क्या होगा, CO2 एंड H2O बनेगा. यहाँ पर एनर्जी जो है वो काफी रिपलेट होगी, इसलिए वी यूज इट एज फ्यूल. एल्केन्स आर वेरी नाइस फ्यूल. मीथेन हम यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, आप ये आज जाके घर पे ढूंढेंगे मीथेन को हम कहाँ यूज करते हैं, राइट. वेरी गुड. इसके बाद है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड. दिस मीन्स कि अगर हम मीथेन को कंबशन कर रहे हैं, हम प्रॉपर पूरा ऑक्सीजन नहीं दे रहे, तो क्या होगा, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड. कार्बन ब्लैक जो होता है वो काला काला जो होता है हमारा, कहीं पे भी ब्लैक कलर का आता है ना, जैसे ऐश टाइप का है, वो वहां पर ब्लैक राख सी वहां पर आपको मिलेगी. एग्जाम्पल सोचा कुछ माइंड में, वेरी नाइस, ट्रू. हम यूज करते हैं इसको एज फ्यूल, राइट. LPG क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एल्केन. अगर वो वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो आपने देखा होगा हमारे यूटेंसिल्स जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, नीचे से काले काले हो जाते हैं, है ना. ओके, नाउ नेक्स्ट. कंट्रोल ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन को कंट्रोल किया कब, कैसे, द वेरी फर्स्ट हमने कॉपर के साथ किया एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वील गेट मीथेनॉल. अगर हम मोलिब्डेनम के MO2O3 के साथ करते हैं, वील गेट व्हाट, वी गेट methanol aldehyde. And when we do it with what,
मैंगनीज का जो हमारा कंपाउंड है उसके साथ करेंगे तो वील गेट व्हाट, इथेनोइक एसिड। फाइन, इसको नोट कर लो। यहाँ पर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि एल्केन से हम ये तीनों ग्रुप कैसे डाल सकते हैं। यहाँ हमने अल्कोहल डाला, यहाँ हमने एल्डिहाइड डाला और यहाँ हमने एसिड डाला। इसके बाद आइसोमेरिज्म, एक लॉन्ग चेन है हेक्सेन की। अगर हम इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इन एसिडिक मीडियम एट 300 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। पहले पेंटेन भी बन सकती है, या तो 2 पेंटेन या फिर 3 पेंटेन। एरोमेटाइजेशन, सिंगल स्ट्रेट चेन को इफ वी विल make it at react it at 600 degrees Celsius and 15 atmospheric pressure in the presence of Cr2O3, we get benzene, and benzene is an aromatic compound. Fine, इनको नोट कीजिए। Now reaction with steam, steam क्या है, water at 100 degree Celsius, मतलब हीट होगी in the presence of nickel, right? तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। Okay, then comes the pyrolysis. Pyrolysis means cracking. आप straight chain ले, उसको heat up कर दें 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मीटू से 773 केल्विन के ऊपर, तो जो straight chain है वो break कर जाएगी। You can check, it is C6 here, it is C4 here and C3 here. We can get multiple hydrocarbons by cracking of straight chain. Fine, सबने लिखा। तो moving to next, conformations. Conformations क्या है बेटा जी, जो हमारी स्पेशियल अरेंजमेंट है, राइट। अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 2D स्ट्रक्चर के ऊपर, कार्बन बनाए 4, हमने उसके बॉन्ड बनाए। जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट इज अ 3D मॉलिक्यूल। जो स्पेस के अंदर उसकी अरेंजमेंट है उस एटम की, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट, राइट। जिसको हम जो कि अपने आप रोटेट होती है। जो बॉन्ड है दैट इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, तो जो सिंगल बॉन्ड है दैट कैन बी रोटेटेड। अब आप यहाँ देखिए, आपके पास यहाँ पर एक CH3 है, एक CH3 है, इन बिटवीन वी हैव अ सिंगल बॉन्ड। दिस सिंगल बॉन्ड कैन बी रोटेटेड, राइट। तो हमारी 2 काइंड्स की प्रोजेक्शंस बनती हैं। द वन इज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन एंड द सेकंड वन इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, राइट। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, न्यू प्रोजेक्शन का सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या कि न्यूमैन्स के अंदर हम ये जो सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला, दिस पॉइंट, जिसको मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, ये वाला पॉइंट, दिस इज द फ्रंट कार्बन, और जो ये पीछे बड़ा सर्कल है, दिस इज द रेयर, पीछे वाली कार्बन है। 2 ही कार्बन का है, हम सिर्फ मीथेन के लिए कर रहे हैं। 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पे, पीछे भी, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करें, जैसे पीछे वाले हाइड्रोजन को हमने रोटेट करना शुरू किया, हम यहाँ तक ले आए, लुक हियर, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, और वी कॉल इट डायहेड्रल एंगल, राइट। डायहेड्रल एंगल हमने कितना मूव किया है इसको, वी मूव्ड इट एट 60 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 60 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होता है, 60 डिग्री, राइट। तो इस ये वाली जो पोजीशन है जिसके अंदर ये ओवरलैप्ड नहीं है दोनों बॉन्ड्स, एक ये वाली जो है इसको बोलते हैं हम स्टैगर्ड, और जो ये वाली है इसको बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड। फाइन, ये 2 समझ में आई। बिल्कुल ऐसे ही हम आते हैं सॉ हॉर्स के अंदर, जहां पर हम अलोंग द एक्सिस देखते हैं, ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, और हमने एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं इसको, राइट, ये एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं, पीछे वाले को मूव करते हैं, पीछे वाले को हमने यहाँ तक ले आए, मतलब इन बिटवीन यहाँ ले आए, सारे हाइड्रोजन थे तो हमें ऐसा कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा, अदरवाइज दिस हाइड्रोजन हमने यहाँ मूव कर दी, राइट। इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड, जब सेम बॉन्ड्स के पीछे दूसरा बॉन्ड है, इक्लिप्स्ड, एंड दिस इज स्टैगर्ड, राइट। अब इसको नोट कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारी स्टैगर्ड फोर्सेस हैं, और जो हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है, और जो हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म है। इक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या है, एक दूसरे के पास है,
This means they will have what? They will have increased repulsion. Thus they have low stability. कहाँ होगी low stability? जहाँ क्लिप्स फॉर्म होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे के बिल्कुल सिर के ऊपर बैठे हैं. लुक यहाँ पर बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है बिल्कुल आस पास से. और ऐसे ही यहाँ पे ये वाला है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो क्या हो रहा है? एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं. बड़ा मॉलिक्यूल होगा, फॉर इंस्टेंस वी टेक इट ब्यूटेन ले लें. यहाँ पर हमने क्या ले लिया? CH3. यहाँ पे भी CH3 ले लिया तो ये इक्लिप्स हो गई. इक्लिप्स के अंदर और बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया तो हमारे पास इक्लिप्स स्टेट के अंदर क्या होगी? रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी. फाइन. Now this is the assignment for the topic. Please note it down and hopefully all of you are comfortable and you can do these questions very nicely. Okay, thank you. Have a nice learning. और इस लेसन को आप पूरा इजीली कर सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप सारे पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे. फाइन. ओके.